جیسا کہ خطوط مکتوب ہے، اخبار ہے، اسی طرح وصیت نامے بھی ہے. جب وصیت نامہ 31 وصیت نامہ جو میرے مولا نے اللہ نے مشکلات میں جب میدان صفین سے وہ واپس پلٹ رہے تھے تو مقام حاضرین پر جب منزل کی قیام کیا اترے ٹھہرے تو آپ نے اس موقع سے استفادہ اٹھا کر اپنے بڑے فرزند امام حسن مجتبیٰ کو ایک وصیت نامہ لکھا ہے. مگر جب اس وصیت نامے کو پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مولا نے وصیت میرے اور آپ کے لیے کی ہے، کیونکہ امام معصوم ہوتا ہے، امام میں خطا کسی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. ہاں مولا جو وصیت کرے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اپنے بیٹے کو بیچ میں ہاتھ بنا دیے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ یہ وصیت ہے اس باپ کی جو پناہ ہونے والا ہے اور جس نے دنیا سے پیس دے دیا ہے، اس کی عمر کافی گزر چکی ہے، اس نے دنیا کی بے آرامی کو دیکھا اور جہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ ان گھروں میں شامل ٹھہرا ہوا ہے جو اس دار پانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں، جو دیار خاموشہ میں جا چکے ہیں وہاں ہے اور وہ پناہ سے بالکل کوچ کرنے والا ہے. ایسے میں مولا بتا رہے ہیں اس بیٹے کے نام وصیت کہ جو دنیا کی خواہشوں میں نہ پوری ہونے والی خواہشوں کا متمنی ہے اور بیماریوں کا ہدف خواہشوں کا مرکز گزر جانے والا نہ ملنے والی دنیا کی حسرتوں میں جس میں مبتلا ہے، مصیبتوں و آلام ہے، پریشانیاں ہے اور دھیمے دھیمے قبر منزل کی طرف سے لے کے جا رہی ہے. اس بیٹے کے نام وصیت امام فرماتے ہیں کہ وہ وارث کے جس کے یعنی بیٹا اس کو وارث ہوتا ہے جب باپ مر جاتا ہے، یعنی مرنے والوں کا جو وارث ہے. آپ نے بتایا اے میرے فرزند یہ وصیت میں تمہیں اس وقت کر رہا ہوں کہ جب میں نے محسوس کیا مولا عزیزم ان جملوں کو اگر ہم سنیں گے غور سے تو ہمیں بہت اچھا محسوس ہوگا اور پھر ہمیں کچھ حقیقتیں ہمارے آس پاس کی مولا کہتے ہیں کہ جب میں نے گزرے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور ان کے حالات کو مشاہدہ کیا تو میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اپنی آخرت کی ہی سوچوں، دوسروں کے بارے میں دیکھوں، یہ میرے پاس موقع بالکل بھی نہیں تھا. اس جستجو میں نے اپنی کوشش اپنا سامان آخرت جمع کرنا شروع کر دیا اور جب میں نے مشاہدہ کیا تو میری نگاہ تمہارے اوپر ٹکی کیونکہ جو میں ہوں وہ تم ہو، تم میرا ہی تو ایک ٹکڑا ہو. میں اپنے تجربے کو تنہا لے کے جانے کے بجائے تمہارے لیے شیئر کر رہا ہوں. تم کو تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی، تمہیں موت آئے گی تو مجھے موت آئے گی، تمہارا نقصان ہوگا تو میرا نقصان ہوگا. تو اس لیے میں نے اپنی زندگی کے لمحات میں اس سے پہلے کہ موت آ جائے مجھے میں نے کچھ تجربہ تمہارے لیے لکھا. اور کہتے ہیں فرزند خبردار اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اس کے ذکر سے اپنے دل کو منور رکھو اور گناہوں سے دوری اختیار کرو اور دنیا کے دلدل میں نہ پھنس جاؤ. میں نے محسوس کیا کہ بچے کا دل جو ہوتا ہے وہ مٹی کے مانند ہوتا ہے، وہ زمین کے مانند ہوتا ہے اور اس سے پہلے اور جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو جو بھی چلا دو وہ اسے قبول کر لیتا ہے. اس سے پہلے میرے فرزند تمہارا دل سخت ہو جائے، اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جائے اور یہ موقع ہاتھ سے چلے جائے میں نے اس وقت کو غنیمت جانا اور تمہارے لیے یہ وصیت نامہ لکھا. یاد رکھو نیکی کے عمل نیکی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، تمہارا ہر قدم اللہ کی سمت ہونا چاہیے، تمہارا ہر قدم آخرت کی طرف ہونا چاہیے. اے فرزند یاد رکھو کہ اس دنیا کو جیسے میں نے محسوس کیا ویسے کوئی محسوس نہیں کر سکتا، اس دنیا کو جیسے میں نے سمجھا ویسے کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں نے اپنی زندگی میں آگے سے لے کر اب تک جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی زندگیوں کے حالات کا مشاہدہ کیا، بہت میں نے ان کے حیات کو پڑھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے اتنی صدیاں زندگی گزاری ہے، ان کے تجربوں سے استفادہ اٹھایا ہے. اسی لیے میں تمہیں دنیا کی حقیقت کا آئینہ دکھا رہا ہوں. یہ دنیا خواہشوں کی جگہ ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. یہ دنیا سے اتنا ہی لو جتنا تم آخرت کو خرید سکو دنیا کے بدلے. ایسا نہ کرنا کہ آخرت بیچ دے دنیا کے بدلے، اتنا ہی حصہ لو جس کا تم جواب دے سکتے ہو. اس دنیا کے بارے میں تمہیں کیا کہوں کہ یہ دنیا کتنی بے وفا ہے، کتنی سنگین ہے. ذرا تم بھی میری طرح مشاہدہ کرو اور ذرا فرصت کے لمحات میں ان کھنڈیروں میں چلو، ان گھروں کی طرف سفر کرو جس گھر میں وکیل رہتے تھے اور وہاں آج سناٹے ہیں.
वहाँ आज ठंडे बने हुए हैं, उनके हालात से देखो, महसूस करो, गौर करो, दिल से पूछो कहाँ गए वो लोग जो इन महलों में रहा करते थे, वो कहाँ ठहरे, कहाँ गुजरे, कहाँ क्याम किया, तो उन्हें वहाँ से रोशन हो जाएगा कि दुनिया से वो ऐसे वो मोड़ के चले गए वो, या वो इस दुनिया में थे ही नहीं, वो दुनिया उनके लिए खत्म हो गई। इसे फायदा उठाओ और आखिरत के लिए कमर बस्ता हो जाओ, वो काम करो जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह और सबसे ज्यादा अहम वसीयत जो मैं तुम्हें करता हूँ कि तक़वा इलाही इख्तियार करो, नेकी के अमल में आगे बढ़ जाओ, गरीबों की मदद करो, बुराई को रोक दो, आँख हाथ अपने आज़ाए बदन से बुराई को रोको और नेकोकार बनो ताकि तुम्हारा शुमार अहले खैर में महसूस हो जाए। और यही असल मंजिल है, अहले खैर में तुम्हारा नाम हो, अहले शर में ना हो, अहले खैर में हो। यहाँ रोक के जुमला कहना चाहती हूँ, आज हमारी कौम, आज सारी मिल्लत मुस्लिमा इतने जो अहले खैर में है, अच्छी बात आती है तो सुन के वही खत्म कर देते हैं, बुरी बात आती है तो उसके बढ़ के उसका चर्चा करते हैं। खुदा हम सबको हमारे नफ्सों को महफूज रखे बलाया से, शर से, हसद से, गिबत फैलाने से, फितने फैलाने से, अपने नफ्स की इस्लाह करने की हमें तौफीक इनायत फरमाए। और मेरे फर्ज याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो जहमत किसी ने उठाई है दीन को वाज़ेह करने के लिए, शरीयत को नाफिज करने के लिए, वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा तुम उनके महबूब, उनको अपना तबीब मानो और उनको अपना रहबर और लीडर मानो कि जिन्होंने शरीयत इस्लाम को नाफिज करने। और याद रखो, अपने आबा व अजदाद ने जिस तुम्हारे आबा व अजदाद ने जिस दीन को, यानी पूरा सिलसिले आदम से लेकर हजरत इस्माइल से लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक, बनी हाशिम तक, अबू तालिब तक, अली तक, फिर इमाम हसन तक, याद रखो तुम्हारे आबा व अजदाद जिस दीन पे रहे हैं उसी दीन पे तुम्हें चलना है, उसी राह पे तुम्हें चलना है। और अपने हाथ से छोटी भी नेकी को जाने न देना, छोटी छोटी नेकियों को समेटते रहना और दुनिया की बेज़ुबानी को बताते हुए मौला कहते हैं कि मैं क्या बताऊँ, दो तरह के रिस्क है। आजकल रिस्क का मसला बहुत ज़्यादा है, लेकिन अली वालों, अली ने रिस्क के बारे में बता दिया। ऐसा भी नहीं कि इंसान बिल्कुल गाफिल हो जाए, ऐसा भी नहीं कि इंसान खाली रिस्क कमाता है और रिस्क के इल्म ना कमाए। दुनिया में रिस्क कमाता है और इससे मौला कहते हैं रिस्क दो तरह का है, एक वो जिसे तुम ढूंढते रहते हो, एक वो जो तुम्हें ढूंढता रहता है। जो रिस्क अल्लाह ने मुकर्रर किया वो तुम्हें ढूंढता रहता है, तुम हरकत ना भी करो तो तुम तक पहुंच जाएगा। इसीलिए कहा वो हरीस ऐसे हैं जो कभी सेफ नहीं होते, एक तरफदार दुनिया और एक तालिब इल्म। और हमें बताना चाहते हैं कि हमारी प्लेस कहाँ है, तरफदार दुनिया में है या तालिब इल्म में है। हर तालिब इल्म, ये तालिब इल्म है जो आपको यहाँ 2 घंटे लगा दिखाई है। फिर मौला कहती है, ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हें कुछ खास बातें ऐसे बयान करूँगा कि जिसको तुम्हें गौर करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। एक अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हारी आखिरत की मंजिल बड़ी आसान हो जाएगी। याद रखो कि तुम अपने खुदा ने जो सारे खजाने बनाए हैं उसकी कुंजी दुआ में रखी है। अल्लाह उसकी कुंजियों को, अल्लाह के ज़मीनों आसमान के अर्शी फर्शी सारे खजानों को उसने दुआ में रखी है। और दुआ तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास कुंजी है। तुम चाहो जब चाहो, किसी बड़े से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन मेरी जान कुर्बान मेरा करीम परवरदिगार जब चाहे मसल्ले के जरिए, इबादत के जरिए, दरसे दुआ के जरिए हम अपने मालिक के रूबरू हो जाते हैं, हम अपने मालिक से मिल जाते हैं। बोला कहती है कि परवरदिगार आलम ने तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मुकद्दर रखा है। अगर तुम दुआ के ज़मज़मे को जुबान पे जारी रखोगे और यकीन के साथ में देने वाला भी वही है, बीमारी उसी के हाथ में है, शिफा उसी के हाथ में है, जिंदगी उसी के हाथ में है, मौत उसी के हाथ में है, रोटी उसी के हाथ में है, उसी की तरफ जाना है। वो या जो जिंदगी देने वाला है वही मौत देने वाला है, और जो मौत देने वाला है कब्रों से उठाकर जिंदगी देने वाला है, पढ़ाने वाला है, उसी के हाथ में पना है। वो ऐसा परवरदिगार है कि जिसकी तारीफ कोई कर नहीं सकता। वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो खिदमत कायनात से पहले भी है, वो कायनात के खत्म हो जाने के बाद भी देगा। उसको किसी आंख ने नहीं देखा, उसकी तारीफ कोई ज़बान नहीं कर सकती, उसको कोई खैर नहीं कर सकता ख्यालात में। वो ऐसा है कि रगे जान से ज्यादा करीब है, ये हम है जो उसे दूर समझे।
स्पीड डालिए, 2 घंटे में पैकअप करूँगी। इससे पहले कि आप और सुना चाहें, याद रखो कि अपने मालिक से मांगो, तन्हाइयों में रोते हुए एक खतरा जो वो सत्य पे टपक जाता है, दामने नहीं मचे मौला में जमा पाता है। अपनी जमजमे दुआ को वहाँ पे जारी रखो और करो। खबरदार ऐसा ना हो कि दुश्मनी और अनाज के मूल रोज सवालों पे सवाल हो जाओ। ये हमारे करंट माहौल के ऊपर, तो मैं इस पे आपको 1 मिनट दूंगी, आप गौर करिएगा और महसूस करिएगा। खबरदार दुश्मनी और अनाज तुम्हारे की मूल रोज तुम्हारे ऊपर न हो। यानी अक्सर ऐसा होता है कि जब दुश्मनी होती है तो इंसान जो है बिल्कुल वैसा ही बच्चे उसे बढ़ करके बदला लेना चाहता है। मौला कहते हैं अगर कोई तुम्हारा अजीज, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारा दुश्मन हो तो अब यहाँ तुम्हारा इम्तिहान है कि वो दुश्मनी करे। तुम अगर मेरे हो तो तुम उससे मोहब्बत करना, वो तुम्हारी राह में कांटे बिछाए तो तुम उसकी राह को साफ करके फूल बिछाना। अगर वो तुम्हारी ग़ीबत करे तो पीछे उसकी तारीफ करना। अगर वो तुम्हारे लिए मुश्किलों की गड़े खोले तो तुम उसके लिए राहें मुहैया करना। वो तुम्हारे ऊपर तंगी करे तुम उसके ऊपर फराहमी से पेश आना। वो तुम्हारी तौहीन करे तो तुम उसकी इज्जत करना। हत्ता वो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तो तुम सब्र करना। याद रखो, जुल्म करने वाला खसारे में होता है, सब्र करने वाला नजात याफ्ता होता है। जुल्म करने वाला खसारे में होता है क्योंकि अल्लाह उसके जुल्म को देख रहा होता है। तुम क्या बदला लोगे? अगर तुम छोड़ दो, माफ कर दो तो उसका बदला वो लेने वाला है। और याद रखो, इतना बड़ा जुमला की आप लिखी हो गई, जब ये जुमला हमने बड़ा खुदा हमें दी, इससे नामत सब फराख दिया था करे। और दुश्मन का जो भी दोस्त है और रिश्तेदार है और अड़ोस पड़ोस है और भाई है, फ्रेंड है, जो भी दुश्मन है, बोला कहते हैं तुम्हारा पक्का जो दुश्मन है, दुश्मन के में बीच में अपने तरफ से ऐड करियो, दुश्मन की सिमत एक जरा मुस्कुरा दीजिए। दुश्मन की सिमत एक जरा, दोस्तों मुस्कुराते हुए इतना क्या कमाल है। दुश्मन की सिमत एक जरा मुस्कुरा के दे, इस हर बड़े लतीफ को भी आज़मा के दे। मौला कह रहे हैं जो तुम्हारा पक्का दुश्मन है, जो तुम्हारी दुश्मनी पे कमर बांधे हुए, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम उसके गुलाम बन जाओ। तुम उसके गुलाम बन जाओ जैसा कि वो तुम्हारा आकाए नेमत है। यहाँ वो कहिएगा आकाए नेमत के माने क्या होंगे? अगर तुम दुश्मन को माफ कर दो, अगर तुम दुश्मन से दुश्मनी को छुपा दो तो नेमत परवरदिगार तुम्हारी दामनगीर हो जाएगी। तुम नेमतों को पालोगे, खुदा की ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर होगी, खुदा की नेमत तुम्हारे ऊपर आएगी। और याद रखो नाहिल और जाहिल इस कैटेगरी में नहीं आता। यहाँ पे गौर करिएगा, जाहिल के सामने और नाहिल के सामने अगर झुकोगे तो अपने आप को छोटा खुदा समझिए। नाहिल और जाहिल यानी जो अपने आप को कुछ समझता है ना, मौला अली कहते हैं जब तुम कुछ समझने लगो तुम्हारा डाउन फ्लो महसूस होता है। अगर तुम्हें तकब्बुर है, हुस्न का, जवानी का, पोजीशन का, तारीफ का, ओहदे का, किसी भी चीज सदौलत का, तो तुम अपनी इब्तिला और इंतहा को करोगे तुम क्या थे और खुदा ने तुम्हें क्या बना दिया। ये खुदा ही है। अगर उसे पता चल जाए, कोई इंसान को हमारे जितना पता चल जाए तो हम सितारा खोल देगा, लेकिन ये खुदा है जो तुम्हारे गुनाहों को छुपाए हुए है। उससे राज़ करो, उससे मुतमस्सिक रहो, उससे मंज़िल वाक़ई का रास्ता जोड़ो, उसके करीब हो जाओ। एक दिन जाके उसी से मिलना है। मेरे फर्जंद जब मुश्किलें आए और छोटा से तुम्हें घेर ले तो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अगर तुम अपने हर मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी में एक मौका आएगा कि तुम अपने आप को एक मजबूत हीरे की बाहों में महसूस करोगे। एक मजबूत हीरा जिसे अल्लाह ने इज्जत दी, उसकी इज्जत को कौन कर सकता है? और जिसे बतज़िल मंदशा वतइज़ मंदशा ये भी करता है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुरान की आयत में नज़र बलगा पढ़ने वाले ने बताया कि दोनों हम ऐसे लग रहा है ये दोनों एक नहीं हैं। ये बस आप दुआएं करते हैं कि खुदा मौला कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे फर्जंद ये कोशिश करो कि मौत तुम्हें गुनाह की हालत में ना आए। मौत के लिए हमेशा तैयारी रखो, दुआ करो कि हालत इबादत में, नेक अमल में तुम्हें मौत आए, ये कामयाबी है। इसीलिए तुम्हारे कायनात ने जब हालत रोज़ा में, हालत सजदा में सर पे ज़रबत करी तो उस समय रब्बे काबा ने बताया कि कामयाबी अल्लाह की इताअत में है। ये लोगों की तारीफ होती क्या करेंगे? ये वक्त पड़ा तो छूट जाते हैं, वक्त खत्म हो जाएंगे, कर जाते हैं, हालात के मुताबिक तारीफ
अजीजम एक मौला कहते हैं कि तारीफ जो करे और तारीफ के लिए जो काम करे, तो अक्सर ये हो रहे हैं 90% लोग तारीफ से भूखे हो गए। शायर को तारीफ चाहिए, जाके को तारीफ चाहिए, काम करने वालों को तारीफ चाहिए, मौलानी से दूल्हा ले लो, शौहर तारीफ करे, बच्चे तारीफ करे। कुछ लोग इतने भूखे हैं, नहीं कहते तो सामने से करवा लेते हैं। मौला कहते जिसने तेरी तारीफ की वो या उसने तेरा खत्म किया। काम करो तो अल्लाह के लिए, काम करो तो इमाम ज़माना के लिए, काम करो तो अल्लाह कबूल करे हमारी सही मुश्किल को, अल्लाह पसंद करे। दुनिया की पसंद के लिए हम क्या करेंगे? अल्लाह कबूल करे, अल्लाह राज़ी हो जाए। बंदे जब नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर तो मनाना मुश्किल है। याद रखो उसने तौबा के दरवाजे को खुला रखा है और वो खुद कहता है मैं गुनहगारों का परवरदिगार हूँ। अगर बंदे गुनाह ना करते तो उसकी गफ़ारियत किसके काम आती? याद रखो उसने एक गुनाह का एक लिखा और एक नेकी का 10 लिखा है। और गुनाह के आश्रय न करके और इमीडिएटली असर नाज़िल न करके उसने हमारे ऊपर रहमानियत की चादर उड़ाई है। वो करीम है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो दाना है, वो मुतवस्सित है, वो अगेना से ज़्यादा करीब है। बेचारे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे कि दाना आँख में लेकर वो लोग गुलजार होता है। सलमान के शेर के साथ मैं बिचारी आप सबकी सलमा कहते हैं कि डाल कर अपने गुनाह पे पर्दा इकबाल